কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে উত্তরপ্রদেশে সপ্তম দফার নির্বাচন। আজ বিকেল ৫টাতে শেষ হয়েছে উত্তরপ্রদেশের শেষ দফা অর্থাৎ সপ্তম দফার নির্বাচন। আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা তিনি বারাণসীতে রয়েছেন এবং বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র তিনি ঘুরেছেন এবং সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, জানার চেষ্টা করেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন যে সেখানকার মানুষ তারা ঠিক কি চাইছেন, ভোটের হাওয়া এই মুহূর্তে ঠিক কোন দিকে বইছে সেটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব সুচন্দ্রিমার কাছে। বারাণসীতে এই মুহূর্তে রয়েছে সুচন্দ্রিমা। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছিল সপ্তম দফার নির্বাচন, শেষ ভোটদান হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো সুচন্দ্রিমা, আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে খুব সুন্দর সুদৃশ্য গঙ্গার ঘাট তোমার পেছনে দেখা যাচ্ছে। জানতে চাইবো যে সাধারণ মানুষ কার পালে হাওয়া লাগছে, কি মনে হচ্ছে? তুমি তো ঘুরলে বেশ কিছুদিন ধরেই, বারাণসীতেও তুমি ঘুরলে, কি মনে হচ্ছে এবার উত্তরপ্রদেশের মসনদে কে বসতে চলেছে? এবং ১৬ কলা পূর্ণ করে এই যে দফায় দফায় নির্বাচন শেষ হলো, এবার এই সকল প্রার্থীদের ভাগ্য বক্সে বন্দি এবং সেই ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১০ই মার্চ। মাঝখানে ব্যবধান রয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই যে যুদ্ধ চললো, প্রচার থেকে শুরু করে প্রোপাগান্ডা, মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া, মানুষ কি পেয়েছে কি পায়নি তার খতিয়ান তুলে ধরা, সব কিছু নিয়ে একেবারে নির্বাচন দোরগোড়ায় চলে এসেছিল এবং দেখতে দেখতে সপ্তম দফার শেষ হলো। ৭টা দফায় উত্তরপ্রদেশেই শুধু ভোট হয়েছে, বাকি রাজ্যের কথা তো বাদই দিলাম, কারণ উত্তরপ্রদেশ গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে বড় রাজ্য এবং কথা তো আছেই, উত্তরপ্রদেশ যার দেশ তার, কারণ ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে মিনি সাধারণ নির্বাচন ২০২২-এর উত্তরপ্রদেশের এই বিধানসভা নির্বাচনকে দেখা হচ্ছিল। তাই সেমিফাইনালে হাওয়া কোন দিকে, কার পালে হাওয়া বেশি বইছে তা জানতেই কিন্তু পালে উঠে পড়েছি আমি। এবং আমার পাশের এই সৌন্দর্য দেখে তুমি বুঝতেই পারছো, দর্শকরাও বুঝতে পারছেন যে আমি এখন কোথায় রয়েছি। বারাণসী একেবারে গঙ্গার তরিতে বসে এখানকার মেজাজ, এখানকার হাওয়ার গতি প্রকৃতি কি তা বোঝার চেষ্টা করছি। আর ভোট, এতদিন ভোট ভোট করে আমরা যাদের কথা শুনেছি, মানুষের কথা শুনেছি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা শুনেছি, ভোট শেষ হওয়ার পর তারা কি বলছেন বলা যেতেই পারে একটা এক্সিট পোলের আমি সম্ভাবনা কি, রেজাল্টের ভোটের মেজাজ কি, কি ইস্যুতে ভোট হয়েছে আর কি ইস্যুর ভিত্তিতে তারা এবার রেজাল্টের অপেক্ষা করছেন সেটা আলোচনা করছি। এবং মন্দির নগরীতে এর থেকে ভালো জায়গায় এই আলোচনার কিছু হতে পারে না, কারণ মন্দির নগরীর পরিচয় এই ৩০০ মন্দির, ৮০-র ওপর ঘাট এবং সেই ৮০ ঘাট থেকে আমরা এই নৌকায় উঠেছি। নৌকা চলতে থাকবে, আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে। ঘাটের সংস্কার যেমন হয়েছে, মন্দিরের সংস্কার যেমন হয়েছে, ঠিক ততটাই কি সংস্কার হয়েছে শহর গ্রামের, নাকি শুধুমাত্র ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে এই পর্যটন স্থলকে? মানুষ এখানকার কি বলেছেন তা তো দর্শকরা এতক্ষণে জেনেই গিয়েছেন এবং কি ভিত্তিতে তারা ভোট দিয়েছেন, মতদান কি ভিত্তিতে তারা করেছেন সেটাও আমরা জানিয়েছি। এবং নিরপেক্ষভাবে এই আলোচনার মধ্যেও এখন থেকেও জানতে চাইবো রেজাল্টের আগে যে অপেক্ষা রয়েছে তাতে বিভিন্ন দলের যে ব্যক্তিত্বরা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে এই নৌকায় রয়েছে তারা কি ভাবছেন। আমি একে একে সব দলের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাচ্ছি, কারণ এরপর থেকে আমাকে হিন্দিতে বলতে হবে যাতে ওনারাও বুঝতে পারেন। आप सभी का स्वागत है कोलकाता टीवी में। बंगाल से आए हैं हम, चुनावी मिजाज क्या था यहाँ का देखने के लिए। चुनाव एकदम शुरू हुआ पश्चिमांचल से, खत्म हुआ पूर्वांचल को लेके, और उत्तर प्रदेश जिसका होता है देश उसका होता है ये माना जाता है, और देश का मिजाज उत्तर प्रदेश से हम देखने आए थे। चुनाव 7 दफा में तो खत्म हो गया, पर एक एक से जानना चाहेंगे कि जो रिजल्ट का नतीजा निकलने वाला है आपके हिसाब से वो कैसा रहेगा। मैं एकदम से शुरू करूंगा, आप यहाँ से आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा घर घर आवाज हो रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग, बोट पे है तो मैं सुनने की कोशिश करूंगी कि क्या मत है आपकी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार यादव। अच्छा, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे जो है अच्छी खासी जो है समाजवादी पार्टी की जो है लहर चल रही हुई है
और यहाँ के सभी वर्गों का यही है कि बेरोजगारी के लिए ही और क्या नाम है आपका शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के ही वजह से जो है वोटिंग हो रही है। मेरा मानना यह है कि मैं माननीय जो है आपका शिक्षा और महंगाई के ऊपर की बात कर रहे हैं। जी 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 मैं युवा पीढ़ी है, इनसे भी थोड़ा बातचीत करना जरूरी है। मैं आज बीच में उनसे बात की भी हूँ। एक बात जो मुद्दे पे वोट होती है और एक बात होता है धार्मिकता, हिंदुत्व, इस पे वोट होती है। जो अभी की हिंदुस्तान की, जो इंडिया का जो ट्रेंड दिखता है, कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, पर जब आप उत्तर प्रदेश में खड़े होते हैं तब यहाँ पे जात पात की बात हो जाती है। चुनावी मुद्दा विकास उन्नयन से घट के धर्म के हिसाब से होने लगता है। उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते, काशी वासी होने के नाते कैसा लगता है आप लोगों को? नहीं, देखिए, जो आप ये कह रही हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि ये जातिगत हो जाए, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। देखिए, वो एक चेहरा है। चुनावी टाइम में सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सोसाइटी है, जो समाज है, वो बहुत ज्यादा बंधा हुआ है जातियों के अंदर, और सबकी पहचान जाति से है। तो हर पार्टी अपने आप को जोड़ने का कोशिश करती है जनता से कि हम आपकी पार्टी से हैं, इस तरीके से आप कह सकती हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग रहते हैं। बनारस में हर समुदाय है, सब है। लेकिन ये केवल एक पहचान के लिए है। मैं कहता हूँ कि टेम्परेरीली आप देख सकती हैं, चुनाव में ज्यादा हो जाता है, दिखता है ये बात। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मिनी इंडिया माना जाता है, हर तहजीब, हर धर्म के इंसान यहाँ पे रहते हैं। और एक साथ अगर बोला जाए कि बंगला में मैं 2 लाइन बोलनी चाहूंगी। मंदिर का घंटा, मतलब मंदिरेर घंटा और मस्जिदेर अजान, अजान जो होता है और मंदिर का घंटा एक ही साथ बजता है। फिर भी यहाँ पे जब चुनाव आता है तो पहले चरण को छोड़ के दूसरे चरण में जो सुनाई दिया था, जो विदाई मुख्यमंत्री है उनके ही मुंह से, योगी जी के मुंह से 80 और 20 की बात, 80 और 20 की बात कहां से आ जाती है? क्या आप बोलना चाहेंगे इस बारे में कुछ? क्या नाम है? मेरा नाम अतुल कुमार दुबे है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ BHU से। तो ये आपने करी 80-20 की बात। 80-20 एक संख्या है। लोकतंत्र के अंदर कभी भी किसी को 100% আপনাদের জানিয়ে রাখবো যে বারাণসীর গঙ্গাবক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে উত্তরপ্রদেশের ৭ম দফার ভোট ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সেই ভোট কিসের ভিত্তিতে হয়েছে, কোন কোন ইস্যুগুলোকে মাথায় রেখে মানুষজন ভোট দিয়েছেন তার ফল তো আমরা আগামী 10 তারিখ জানতেই পারবো। তার কারণ ইতিমধ্যেই বাক্সবন্দি হয়ে গিয়েছে সেই ফলাফল কিন্তু বেরোবে 10 তারিখ। কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে আমরা একটু কথা বলে নিচ্ছি, বোঝার চেষ্টা করছি যে ভোটের ফল ঠিক কোন দিকে যেতে চলেছে। এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমরা আবারও ফেরত আসছি আপনাদের সঙ্গে। সরাসরি আমরা কথা বলাবো আমাদের প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা এবং তার সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত অতিথিরা রয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। সময় এখন একটা ছোট্ট বিরতির। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে উত্তরপ্রদেশে ৭ম দফার ভোট শেষ, বিকেল ৫টায় শেষ হয়েছে ভোটদান প্রক্রিয়া। কিন্তু এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের ছবিটা ঠিক কীরকম, সাধারণ মানুষজন তারা কিসের ভিত্তিতে এই ভোট দিলেন, ভোটের ইস্যুগুলো কী ছিল, তাই নিয়ে আমরা বিশেষ প্রতিবেদন তুলে ধরেছিলাম আপনাদের সামনে। তার কারণ আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা বেশ কিছুদিন যাবতই উত্তরপ্রদেশে রয়েছে এবং সুচন্দ্রিমা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের সামনে সেই প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। আমরা আবারও সরাসরি চলে যাব এই মুহূর্তে বারাণসীতে, গঙ্গা বক্ষে রয়েছে সুচন্দ্রিমা। তুমি যেমনটা জানাচ্ছিলে, আবারও তোমার কাছে ফেরত যাচ্ছি। সব ধর্মের মিলন যেখানে রয়েছে সেই বারাণসী একদম শেষ দফায় তাদের নির্ণায়ক মত দিয়েছে এবং যেখানে মন্দিরের ঘণ্টা এবং আজানের সুর একসঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, সেখানে সেই রাজ্যে যদি ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া হয় সেটা কতটা প্রভাব পড়তে পারে। मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पे सब धर्म की बात की जा रही है, पर दूसरे चरण के बाद 80-20 की भी बात आई थी। तो ये वोट मांगने के लिए क्या यह जायज है? विकास कीजिए, विकास के नाम पे वोट मांगिए। ये विकास का 80-20 से कोई मतलब नहीं है और मुझे लगता है इसको कोई धार्मिक रंग देना भी नहीं चाहिए।
लोकतंत्र में कभी भी ये संभव नहीं है कि किसी को 100% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विश्वास है कि प्रदेश की जनता हमारे कामों से खुश होकर के 80% जनता हमें चुनेगी। और ये क्या नाम है, इतना तो हो सकता है कि 20% वोट विपक्षी आपस में बांटेंगे। इसमें कहीं भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्म की बात नहीं की थी। हाँ, विरोधियों ने धर्म की बात इसमें जरूर जोड़ दी, क्योंकि उनकी राजनीति ही धर्म के आधार पर चलती है, तुष्टिकरण के आधार पर चलती है। इस बार भी 17 में भी नहीं था, इस बार भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? जिस प्रदेश में खड़े हैं 76% यहाँ के लोग 76% कम नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं, फिर भी खान पान या फिर पोशाक इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो किसने टिप्पणी किया पोशाक के ऊपर? पहले मुझे आप ये किसने कटमुल्ला क्या चीज है? कटमुल्ला क्या चीज है? हर जाति हमारी पार्टी का कि कोई किसी और धर्म का कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो वहां की मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आजम खान जी की रामपुर है, तो वहां पे लोग अगर आजम खान को वोट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आजम खान हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रतिनिधि तो वहां के जो प्रतिनिधि खड़ा होता है उसका होता है। मुस्लिम आज जीतेगा तो मुस्लिम को वोट दिया जाएगा। अब देखेंगे रामपुर अपने दल से नहीं है तो अपना दल से ले लिया कैंडिडेट और गठबंधन कर लिया। गठबंधन तो 17 में भी हुआ था, 17 के बाद कहाँ गया गठबंधन? सुहेल देव तो निकल गए गठबंधन से। ये सुहेल देव के तमाम बयान आप देख रहे हैं, वो बिन पेंदी के लोटे हैं और चुनावी माहौल में मनोरंजन का काम कर रहे हैं। वो कॉमेडी वाला थोड़ा सा काम कर रहे हैं, चुनावी माहौल बहुत टेंस हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की भी बातें हम सुन रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए बातें, इतनी गंभीर बातें वो करते हैं, उनकी बहुत सारी जगह बातें उनकी रेलेवेंट है, लेकिन वो मजाक नहीं करते हैं, गाली गलौज वाली बातें नहीं करते हैं, बहन बेटियों वाली बातें नहीं करते हैं। वो ओपी राजभर जी की आप बात कर रही है ना, वो ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो अपनी बहन बेटियों के साथ घात करेंगे, और उसी पार्टी के साथ जाकर के वो आज बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह जी को वो गालियां देते हैं और उसी पार्टी में जाकर के बैठे हुए हैं। तो वो ऐसे नेता हैं जो अपने हितों को साधने के लिए हर पार्टी के साथ जुड़ते रहते हैं, उनके अपने हित नहीं सधे। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन हित में कौन काम कर रहा है ये बड़ी बात है। मैंने इनको ज्यादा टाइम दिया है, आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि मैं पूर्वांचल में जिस जिस जगह पे घूमी हूँ बहुत सवाल उठे हैं और जो शासक है उनके ऊपर ही प्रश्न उठाया जा सकता है, जो ना कि विरोधी है। तो सर आपका नाम? यादव, मैं समाजवादी पार्टी से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या इस बार क्या लग रहा है, ये जो शासक की तरफ से बोल रहे हैं और पूर्वांचल का जो मिजाज है? सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भाजपा सरकार एक बार भी पूरे चुनाव में 7 चरण के चुनाव हुआ, कहीं भी एक बार भी नहीं बोला कि मैंने विकास पे वोट मांग रहा हूँ, मैं शिक्षा पे वोट मांग रहा हूँ, मैं नौकरी पे वोट मांग रहा हूँ। कहीं भी एक भी आप घोषणा पत्र में देख लिए, कहीं भी ये नहीं है। जहाँ भी है आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कटमुल्ला, सिर्फ गुंडाराज, बस यही एक मुद्दा उनके पास। हिंदू पाकिस्तान तो इस बार नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं आया? कहाँ आया? पाकिस्तान आया, बहुत बड़ा है। आप 700 चरण का उठा के देखिए, चुनाव आया। अच्छा, पहले वो चुनाव में बाकी है। मुझे लगा पहले 3 चरण में तो किसानों ने जवाब दे दिया है शायद परसेंटेज। नहीं, जवाब जब ये दिया ना तो इन लोगों ने फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया कि अब इन लोग कहना है कि हम चावल फ्री में देंगे, गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। अरे 5 साल आपकी सरकार थी, आपको देना चाहिए ना। 5 साल सरकार थी, आपको देना चाहिए। अभी तक कहाँ थे? जनता नहीं थे क्या ये? और जनता बहुत बुरी तरह इन लोग को दरकिनारे करने जा रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन सैलाब लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और हम लोग 300 सीट प्लस हम लोग आ रहे हैं। आप देख 300 सीट प्लस। कई जगह पहले भी इनका सरकार था, कई जगह ये बोलते भी है जंगल राज। ये वर्ड क्यों आता है बार बार? देखिए, जंगल राज कौन करता है? जो सत्ता में रहेगा वो कभी जंगल राज नहीं करेगा। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में दंगा हो। ये दंगा जितने भी होती हैं सब जो है विश्व हिंदू परिषद RSS करवाती है, न कि जो हिंदू करवाते हैं। ये बसपा से आए हुए हैं, दिख रहा है एकदम क्या मिजाज क्या है? खुश लग रहे हैं बहुत? कोई मिजाज नहीं है। अब तो जो जनता का मत था वो पेटी में बंद हो चुका है।
अब 10 तारीख को ओपिनियन आएगा कि कौन कितने पानी में है, और विकास तो हुआ ही नहीं, कोई काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आप बीच पानी में हैं, अभी तो आप बीच पानी में हैं, आप बीच गंगा में बैठे हैं, तो दल का हालत कैसी? बीच गंगा में कहा गया, हमारे यहाँ कहावत कि गंगा में कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हाँ, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 10 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ है, जिसके पास उस आंधी में, जिसको लोग आंधी कहते थे विपक्षी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि माननीय मोदी जी का आंधी था, उस आंधी में हमको 23% वोट मिलने का काम किया। आप ये सोचिए कि भाई साहब बंद कर दीजिए जरा सा, वोट से ही गवर्नमेंट बनेगी ना, जिसके पास वोट रहेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। हमारे पास 23% वोट उस समय था, उस आंधी में। आज तो पूरी जनता परेशान है, और 23% था और 32% 30% में सरकार बननी है। कितना चाहिए हमको? 7%, 6%। तो 6%, 7%, 8% वोट हर कास्ट का मिल रहा है, हर लोगों का मिल रहा है। माननीय बहन जी के साथ सर्व समाज का वोट मिल रहा है, इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनने जा रही है 10 तारीख को। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे जनता झूठ, फरेब, धोखा और हिंदू मुस्लिम करने वालों को नकार करके माननीय बहन जी को सत्ता पे बैठाने का काम करेगी। ये 10 तारीख को आपको क्लियर पता लग जाएगा। अच्छा, तो कई जगह ये पता नहीं मुझे, विरोधियों का कोई प्रोपागंडा है कि नहीं कि बसपा को सब बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, सच है? कौन बता दिया? कैसे बता दिया? आप चूंकि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और ऊपर वाले के कृपा से आप एंकर हैं। 10 लोगों से आप क्वेश्चन करती हैं, एक जगह आप बता दीजिए जिसमें माननीय बहन जी कही हो कि हम बसपा के साथ सवाल ही नहीं उठ रहा है। हम बहुजन समाज पार्टी हैं, और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही, हम कैसे भाजपा के साथ चल जाएंगे? सवाल ही नहीं उठ रहा है। हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और जिसके पास वोट रहेगा वो सरकार बनाएगा, जिसका विधायक ज्यादा रहेगा वो सरकार बनाएगा। तो हमारे पास विधायक आ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आ रहे हैं। जिसके पास वोट रहेगा वो सरकार बनाएगा। 23% उस समय था, आज 32%, 40% हमको वोट मिलने जा रहा है। अच्छा, अगर हंग हुआ तो मान लीजिए क्या सिचुएशन होगा? हंग मतलब बीच में कोई किसी को कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ और कहना चाह रही थी आप। हंग असेंबली टॉपिक होता है, हंग असेंबली पता है ना आपको? अगर आ गया तो क्या होगा? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, शरद सिंह। तो क्या विचार है, काशीवासी ने क्या सोच के मतदान किया? सिर्फ काशी का ही नहीं, अब तो 7 दफा हो ही गया है, पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात की ये जो गंगा माँ है, इन्हीं गंगा माँ का उन्होंने कहा था जब ये चुनाव 2014 में लड़े, हमारे मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ आए नहीं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो अब उनका समय खत्म हो गया। इस चुनाव के बाद 2024 में भी वो केंद्र से चले जाएंगे। अच्छा, तो चुनावी प्रचार तो उन्होंने गंगा मैया से ही शुरू किया था, नहा के फिर पूजा कर। अभी आप देखे होंगे कि 500 रुपये पर टाली पर, और उन टालियों के बारे में, उन गरीबों के बारे में पहले कुछ नहीं किए। 500 रुपया अभी 2 दिन पहले प्रचार के लिए रोड पे दौड़ा दिए। क्या किया उन्होंने जनता के लिए? रोजगार कहीं कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। ये घाट जो आप देख रहे हैं, ये घाट पे सफाई और घाट में जो चमक है, ये मतलब उनके जन्म से बहुत पहले से ये चीज है, और आज भी वही तरह बरकरार है। जैसे मतलब सुनने में आया, घाट को संस्कार करने में, सफाई करने में जितना पैसा लगाया गया है, मतलब उतना अगर किसी अस्पताल में लगा देते तो कोरोना के टाइम पे ये नहीं होता। ये सच है? एक बार 12 महीने में एक बार बाढ़ आता है और वो पूरा घाट सफाई कर देता है। इनके मशीन की जरूरत नहीं है। तो इतने पर्यटक जो आते हैं, सफाई है तो बोलते हैं, तो ये अगर आप साइकिल की तरफ बोल रहे हैं ना, सरकार अगर आएगी तो सिर्फ वाराणसी मतलब एक रिलीजियन इकोनॉमी तो नहीं है, रिलीजियस इकोनॉमी के अलावा भी कुछ हो सकता है इस प्रदेश का? देखिए, 7 तारीख आज है। आज जनता ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ साइकिल पर मोहर लगाकर एकदम पूरे बहुमत से सरकार बन चुकी है। 10 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। उसके बाद सारी विकास की जितनी योजनाएं सब जनता को मिलना चालू हो जाएगी। जनता एकदम तैयार हो गई है। कहीं गली में घूम कर देख लीजिए, जनता एकदम हाथ खड़े कर बैठी है।
आपने तो बोल दिया, पर मैं जो जानना चाहती हूँ कि सोच क्या है, भावना क्या है। आप समझे, मैं इनसे जो सवाल पूछा मैंने, सिर्फ रिलीजियस इकोनॉमी नहीं, मंदिर नगरी है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, घाटों पे बैठते हैं, यहाँ का इकोनॉमी उससे चल जाता है। पर पूरे वाराणसी, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में एक जगह है जहाँ से और भी कई जगह जा सकते हैं, कनेक्टिंग सिचुएशन होता है ना एक, तो उस इकोनॉमी क्या कैसे चलता है? मतलब ये बेरोजगारी की बातें क्यों उठ रही है? ये तो है कि बेरोजगारी तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा इस समय, वो तो काम तो किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका काम है, लेकिन बेरोजगारी भी उस तरीके से बढ़ा है अधिक, क्योंकि लोग काम तो दिख रहा है लेकिन बेरोजगारी भी उस तरीके से दिख रहा है कि हाँ बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रही है इस समय, कि मार्केट की जो स्थिति हालत है इस समय, तो समझ लीजिए कि स्थिति तो बहुत गड़बड़ है इस समय जो है इस समय। लेकिन रह गया कि सब भाजपा का काम तो है, लेकिन बेरोजगारी में उस तरीके का काम आपको लगता है ये इस बार इलेक्शन में जो जो मुद्दे उठे हैं सबसे ऊपर बेरोजगारी है? बेरोजगारी है सबसे ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी है, लेकिन अब बेरोजगारी तो मतलब जो स्टैटिस्टिक्स आए हुए हैं 45 इयर्स में सबसे ज्यादा, और उसमें यूपी का नाम, इतना क्यों? मतलब 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। आप एक तरीके देख रही हैं, 5 साल में योगी जी की सरकार रही, तो आप इसमें देखिए 2 साल से पूरा देश, पूरा विश्व पैंडेमिक का शिकार है। वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देश की जो मूलभूत जरूरी चीज थी, इसमें स्वास्थ्य की समस्या कुछ था ही नहीं, कोई ढांचा नहीं थी। जो पहले की सरकारें थी, कम्युनिटी हेल्थ की बात। हाँ, तो उन सरकारों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था ताकि हम इस पैंडेमिक से निकल पाए। किस सरकार की बात कर रहे हैं? मोदी जी की सरकार तो 14 साल से है। इससे पहले की जितनी भी सरकारें, उसके बाद भी आप कहीं की कोरोना से निपटने का, तो यूपी इसमें सबसे अव्वल रहा है कोरोना से निकलने के लिए। नो डाउट यहाँ की इकोनॉमी खेती पर आधारित है, कृषि आधारित हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, आबकारी विभाग शराब पे। उसके बाद भी योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बेरोजगारी एक मुद्दा जरूर है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन जो सरकार बन रही है इस बार योगी जी की, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा काम थोड़ा सा अगर कैमरे पे बताएंगे, जैसे आपने 3-4 बात बताई, एक बेरोजगारी नहीं है, दूसरी के स्वास्थ्य का कोरोना की वजह से खराब हुआ, उससे पहले ठीक ही था, और कोरोना सिर्फ उत्तर प्रदेश में आया है, देश में नहीं आया, विश्व में नहीं आया। जहां जहां की जीडीपी सेम है, अच्छी भी हुई है, मतलब हमसे ज्यादा बांग्लादेश की जीडीपी अच्छी हुई है कोरोना काल में, सिर्फ उत्तर प्रदेश का कम हुआ है। उत्तर प्रदेश का कम हुआ है और इंडिया का कम हुआ है? सबका कम हुआ है, सबका कम हुआ है। हम और एक बात, कृषि की बात आपने कही, सिर्फ उसी सेक्टर में 3.4 ग्रोथ आया था जीडीपी का, सिर्फ उसी क्षेत्र में। तो मैं कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, जो जरूरी चीज थी वो नहीं थी। जब अचानक से कोरोना बढ़ा, पूरा देश घर के अंदर, अचानक से कोरोना बढ़ा, अचानक से तो बढ़ा था मैम, 10,000 से तुरंत 1 लाख पे पहुंचा, 5 से 1 हफ्ते लगे होंगे, ये अचानक से ही बढ़ना होता। नहीं, ये मध्य प्रदेश वासियों को शायद पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ पे इलेक्शन का इतना प्रचार हो रहा था। सबको पता था मैम, सबको पता था। जो जरूरी चीजें थी, पीछे की सरकारें जो थी वो काम नहीं कर पाई थी, इस सरकार ने उनको पूरा किया है। आप देखिए बीएचयू में ही डीआरडीओ एक हॉस्पिटल बनाया था, तुरंत 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल चलाया गया, टेंट लगा के। तो नहीं था तो टेंट ही में तो होगा, लेकिन सारी मूल उसमें सुविधाएं दी गई, मरीजों का उपचार हुआ, बाहर निकल के है। शिक्षा नहीं ना, टेंट अभी भी है। अगर पेंडेमिक फिर से बढ़ता है तो उसके लिए वो बना के रखा गया है कि फिर से उसको ओपन किया जाए। क्या काम करते हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, बीएचयू से, विकास सिंह नाम है मेरा। रिसर्च कर रहे हैं जी। किस विषय पे? सोशियोलॉजी में, राइट टू एजुकेशन, डिकेडल इम्पैक्ट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पे आप रिसर्च कर रहे हैं बीएचयू से, बहुत बढ़िया बात है। उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन का जो रेट है, मतलब हायर की नहीं, प्राइमरी की भी बात कीजिए। प्राइमरी की बात, अब संख्या पता है ना आपको, आप फिर भी बोलेंगे, मतलब मैम आपकी जानकारी में बता दूं, मैं 2012 में इंटरमीडिएट पास किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा माहौल था कि स्कूल ना जाओ लेकिन नंबर 80% आते थे, टोटल नकल। सरकार ने नकल को काबू में कर लिया। तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर रहेगी
हमारा नींव ही कमजोर रहेगा। हम स्कूल गए नहीं, हम 90% से पास हो गए। पड़ेगा नहीं, सरकार अगर नकल करना रोकेगी तभी स्टूडेंट सुधरेगा। नकल एक होता है ना कि हमको नकल से पास हो जाएंगे, कुछ करना है नहीं, क्या पढ़ना। ईमानदार सिर्फ सरकार हो, स्टूडेंट ना हो। ईमानदार, वही तो बात है। सरकार एक ऐसी चीज है जो उस चीज को लेके आ रही है, बढ़ रही है। नकल रोका, लड़कों के मन में आया कि हाँ हम फेल हो जाएंगे, तो पढ़ना शुरू किया उन्होंने, बढ़ा है, रेशियो बढ़ेगा। तुरंत तो हो नहीं पाएगा ना। विकास और परिवर्तन एक दिन की चीज नहीं है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे मैं सबकी मन की बात भी जानना चाहूंगी। अच्छा, आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे भी आंकड़ों की बात हो रही थी। सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए जाते हैं रोजगार पे, स्वास्थ्य सुविधा पे, किसानों के ऊपर। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे हुए हैं या अन्य पार्टियों के लोग हैं, हमारे देश के एक महापुरुष थे राम मनोहर लोहिया जी। आपके तो बहुत बड़े आदर्श हैं, मेरे भी आदर्श हैं। वो संसद में कहा करते थे कि इस देश में बातें होनी चाहिए तो तथ्यों पे, डाटा पे होनी चाहिए। तथ्यों पे बातें होंगी तो देश के नेता भी हिचकिचाएंगे और पत्रकार भी सवाल पूछने से डरेंगे। आपने बात की रोजगार के ऊपर, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में रोजगार के डाटा कार्मिक विभाग जारी करता है। और कार्मिक विभाग के डाटा को अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो मायावती जी की सरकार में मात्र 92,000 सरकारी नियुक्तियां की गई थी। बाद में आई अखिलेश जी की सरकार, मात्र 2,28,000। और मौजूदा इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, इस कोरोना के दौर में भी 4,28,000 नियुक्तियां दी हैं। ये नियुक्ति पत्र जिनको प्रदान किए गए हैं, वो बात है। रोजगार और नौकरी में फर्क होता है। अब मैं बात करता हूँ रोजगार की। इस कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश था, 40 लाख मजदूरों की वापसी हुई थी। 1,82,000 कुटीर उद्योग स्थापित किए गए थे। उसमें से 80,000 कुटीर उद्योगों को सरकारी अनुदान प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। अपने देश में नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है प्रथम लहर के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे नीचे थी। इसका कारण मैं आपको बता दूं, पिछली सरकारों ने जो कुप्रबंधन किया था ना, उसके हिसाब से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे हमारे पास संसाधन। उसके बाद 2020 में कोरोना आया, 2014 में मोदी जी आए, 6 साल में अस्पताल बनाने का टाइम नहीं मिला, ये आप बोल रहे हैं। और मंदिर वही बनाएंगे ये बोलते हुए जा रहे हैं, और बनाया भी तो अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आपके लिए बता दूं, स्वास्थ्य जो है संवर्धित। आपने जो नीति आयोग की बात की है, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि डेटा मेरे पास भी है, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रही हूं। जितने भी, किसी भी दल का ले लीजिए, अगर बीजेपी शासक दल है, डबल इंजन का सरकार चलाती है, जितने भी मतलब यहाँ पे पर डे इनकम है लोगों का, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, एक नेता जो वोट मांगने लोगों के पास जाता है, उसका संपत्ति देखिए। संपत्ति कोरोना काल में भी बढ़ा है, करोड़पति है सब। ज्यादातर 60% करोड़पति आपके कैंडिडेट है। और गांव में एक दिन का 150 रुपए मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। ये इक्वलिटी है, सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते हैं। 150 रुपए किसी मजदूर को मिल रहा है, पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे। न्यूनतम मजदूरी 300-350 रुपए है। योगी जी की संपत्ति आप चेक कर लीजिए, दुगनी भी नहीं हुई है। मुलायम सिंह सरकार की संपत्ति चेक कर लीजिए, 20 गुना बढ़ गई है। ये अंतर है दो सरकारों के बीचों का। एक ऐसा व्यक्ति जो पहलवानी करता था, गांव में अपने क्या नाम है टीचिंग करता था, उसके परिवार में 4-4 ब्लॉक प्रमुख हैं, तो सारे संबंधित ग्राम प्रधान हैं। यश भारती सम्मान पुरस्कार जारी कर दिया जा रहा है। उस यश भारती सम्मान की सम्मान राशि 54,000 कर दी गई। और किसको दी गई? सैफी महोत्सव आयोजित करने वालों को। आप एक बार आंकड़े चेक कर लीजिए, गूगल में भी होगा, जो दिए गए हैं और जो सही में उनके घर, उनके कारोबार और कोरोना के टाइम पे उनका जो बढ़ा है, संपत्ति सिर्फ नहीं, आय बढ़ा है। वो कैसे हुआ? मजदूरों को नहीं मिला। लेबर एक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर ले, ये बहुत देर से बैठे हुए हैं। आपने सुना, ये सब बात सुना, कुछ इस बारे में आपकी टिप्पणी है या फिर मैं दूसरे चरण में जाऊंगी, पर इस बात में? देखिए, मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूँ कि आज के टाइम में हर वर्ग की अलग अलग मांग है। ठीक है, मैं छात्र हूँ, पढ़ रहा हूँ, रिसर्चर हूँ, तो मेरा आगे का जो मांग है कि मुझे रोजगार चाहिए। ठीक है, मैं रोजगार की बात करता हूँ, भविष्य की बात करता हूँ। और मैं एज ए वोटर बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी सेफ्टी देखूंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा तो कोई भी आदमी अगर किसी विदेश में भी घूमने जाता है तो पहले देखता है कि वहाँ का हालात कैसे हैं, वो जाने लायक है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं वहाँ सेफ रहूंगा, मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश में मैं सबसे पहले देखता हूं कि अगर चुनाव के बाद जो भी सरकार बनती है, वो कोई भी सरकार हो, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो बदलाव आता है वो लॉ एंड ऑर्डर में आता है। और उत्तर प्रदेश ऐसा संवेदनशील मुझे दिखता है। आप पश्चिम की बात कर लीजिए, मैं बेसिकली पश्चिम से हूँ, लेकिन 8 साल से बनारस में हूँ, देख रहा हूँ, और मैं पश्चिम को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ।
पश्चिम में, मैं सहारनपुर से हूँ, लेकिन मैंने देखा है और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव आता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक टकराव होता है ना चुनाव के टाइम में, उसके कारण जो पैदा होती हैं चीज़ें वो बहुत लंबा चलता है और वो बदलाव आता है। लोग फिर अपना चलाते हैं, कुछ दबते हैं, कोई दबाते हैं, तो इस तरीके। ये इलेक्शन के बाद वाला सिचुएशन की बात कर रहे हो? नहीं, इलेक्शन के बाद वाले सिचुएशन, मैं इलेक्शन से पहले की सिचुएशन की बात कर रही हूँ जो 5 साल में हो गया है। ये 8 साल से मतलब डबल इंजन है। मैं बता रहा हूँ। हाँ। अगर मैं 8 साल से बात देखूं, वो बात देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पश्चिम से हूँ, तो पश्चिम में पहले क्या था कि हम लोग रात शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, ये बात पे मैं इस सरकार की तारीफ करता हूँ। ठीक है कि अब हम लोग अपने आप को बहुत सही सेफ महसूस करते हैं। हम रात को कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इवन बहन है या कोई भी लेडीज है तो वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही है। मैं इस बात शहर की नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं या गांव में भी? तो फिर हाथरस उन्नाव क्यों होते हैं? नहीं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और इतना मैं कह पश्चिम में आता है, मैं इतना बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप पहले से कम आंकड़े देखेंगे, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। होते हैं, आप मान रहे हैं, पर कम होते हैं। 100% तो एकदम सेफ नहीं हो सकता एकदम से। सरकार काम कर रही है उस बात पे, और मैं पर्टिकुलरली उस सरकार को नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके काम की नीतियों की बात कर रहा हूँ कि वो चीज मुझे लगा कि वो हुआ है, उसमें परिवर्तन मैंने देखा है। ये चीज मुझे देखने को मिली है कि उन चीजों में अब मैं, जैसे मेरा हरियाणा बॉर्डर लगता है, पंजाब बॉर्डर लगता है, तो वहाँ की सरकारों की जो तरीके हैं या पुलिस व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से पहले बहुत आगे हुआ करती थी। लेकिन अब मैं मतलब बहुत बेहतर देखता था। कैसे? मतलब जनता मानती है उनकी बातें या डरती है उनसे? जी, उनसे जनता मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी। आप ले लीजिए यातायात के नियमों को ही ले लीजिए, सबसे ज्यादा टूटते हैं उत्तर प्रदेश में। पहले क्या होता था, अब आप चले जाइए, आप हेलमेट भी लेके जाते हैं, आप हर चीज के साथ सिक्योर होके चलते हैं कि भाई मेरा चालान हो जाएगा। तो ये एक जो चीज बदल रही है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि लोग बदल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। वो सरकार की नीतियां हैं जिससे लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों के लिए है और हमको ये समझना चाहिए। मैं ये परिवर्तन देख रहा हूँ, मुझे ये देखने को मिला। तो आप तो लॉ एंड ऑर्डर की बात सिर्फ कर रहे हैं, मैं सरकार जो गवर्नेंस चलाती है 5 साल में क्या किया है और 5 साल में क्या होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया है, ये आपके नजरिए में? हाँ, मैं बताता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य की आप बात करेंगे तो पैनाडेमिक तो सबके लिए आस्मिक था, कोई पता तो नहीं था। वो तो कोई भी सरकार होती तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो एक्शन लेती, कोई भी सरकार होती। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से पैनाडेमिक आया है और उसके हिसाब से जो भी कार्य हुए या जो भी नीतियां बनाई गई हैं वो जहां तक एकदम तो सफल नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोग, मैं देख रहा था कि टीका नहीं लगवा रहे हैं कोविड का। लोगों के अंदर ये जो भ्रांतियां हैं, अफवाहें फैली हुई थी कि आप मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सरकार की जो कैंपेनिंग में देखता हूँ ना, अब मैं वो आंकड़ा बदलता हुआ देख रहा हूँ। तो लोग हैं, बदल रहे हैं। लेकिन हाँ, सही है, नियंत्रण में नहीं है उतना, मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य विभाग, लेकिन बदलाव है। हाँ, और शिक्षा की बात आप कर लीजिए, आप प्राइमरी एजुकेशन देख लीजिए। प्राइमरी एजुकेशन में मैं देखता था कि पहले, अब मैं स्मार्ट क्लासेस की बात समझ रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल्स बदल रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। टीचर लोग अब परमानेंटली मैं स्कूल में देखा, पहले ये सिर्फ शहर का बता रहे हैं या गांव का? क्योंकि गांव में भी हालात बदले हुए हैं, हमने भी घूमा है, तो वो तो झूठ नहीं है जो देखा हुआ है। कहीं बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, कोरोना की वजह से हो सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो कारण समझ सकता हूँ, मैंने कहा ना कि वो तो आस्मिक था, वो आया, उसकी वजह से आर्थिक संकट सब पे आया है, कारोबार ठप हो गए। मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ, लेकिन मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ सरकार के कंपैरिजन में कि सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों ही स्टूडेंट हैं, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जो मंदिर नगरी के हिसाब से जाना जाता है बनारस, कई मैंने आज बीएचयू में मैं सुबह गई थी, उन कई जनों से बात की कि बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, तो उस मतलब शिक्षित स्थल के हिसाब से भी बनारस की एक परिचिति देशवासी के सामने आए। ये क्यों नहीं हो पा रही है? सिर्फ मंदिर नगरी, धार्मिक जागरूकता, इसके ऊपर ही क्यों घूमती है? नहीं, गलत बात। बनारस का एक और परिचय कब आएगा? बनारस की पहली पहचान है कि एक धार्मिक नगरी है, दूसरी पहचान है कि शैक्षणिक नगरी भी है। यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और ऐसे भी 1-2 और जो है कि यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है। शिक्षा का माहौल नहीं है, मैंने नहीं कहा कि परिचिति सिर्फ धार्मिक नगरी से क्यों है।
आपसे कह रहा हूँ ना कि जो धार्मिक नगरी है ना वो पुरानी परंपरागत है, जो बुनियादी चीज है कि लोग उसको जानते हैं कि काशी है तो धार्मिक नगरी है, लेकिन लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पूरा पूर्वांचल, बिहार के छात्र, पूरे यूपी के छात्र, इवन अब दिल्ली के लोग भी आते हैं। DU से ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ मास्टर्स करने लड़के आ रहे हैं। तो अब चीजें बदल रही हैं और धीरे धीरे इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। सरकार और भी काम कर रही है, 1-2 और विश्वविद्यालय खुल जाए तो और अच्छी बात है। और विश्वविद्यालय से होके फिर नौकरी की बात आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो बातचीत हो रही थी तो इसमें क्या आप सहमत हैं या फिर आपकी क्या बात? हम तो यही देख रहे हैं कि नाम बताइए। मेरा नाम संजय है और मैं एक आम जनता हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि कोरोना से पहले जो भी अपने जनता की भाव की बात बता रहा हूँ मैं, तेल है आपका 80 रुपये रहा, और भी चीज़ें हैं, पेट्रोल भी है 60-70-75 रुपये रहा। ये कोरोना के बाद जनता के लिए क्या की? हम तो ये दुनिया कहते हैं, कोई भी हो जनता को पहले, क्योंकि जनता से ही सब नेता है, जनता से ही पूरे धर्म है। मैं तो यही कहता हूँ कोई भी चीज़ है एक सिस्टम से चले। आज सिलेंडर के भाव कितने हो गए हैं, शिक्षा है, सब लोग बात करते हैं, लेकिन ये जनता के बारे में नहीं सोचते हैं कि मतलब वो क्या कर रहे हैं। बेरोजगारी के लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बेरोजगारी है, लेकिन ये है आदमी करे क्या करे। महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो यही चीज़ हम कहते हैं कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, जनता को देखे। चुनाव से पहले जो नेता आते हैं, चुनाव के बाद भी दिखते हैं, तो आपके इलाके में दिखते हैं, तो तब आप लोग ये मांगे क्यों नहीं रखते? सब जरूरत के हिसाब से होता है ना। जिसका पकड़ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिसका पकड़ है, जानते हैं, तो उनको जाती रिस्पेक्ट होता है। एक आम भाई वो तो वो लोग बताए ना, जहाँ हम लोग अपना आवाज उठाते हैं, जहाँ कहते हैं वो सुने तो ना। अब क्या कहती है, अब यही रहता तो कुछ कम नहीं होता, कुछ भाव कम नहीं होता, क्या होता है? हवा जो कुछ कई जगह पे जैसे घुमाए, पूर्वांचल की मैं अगर बात मान लूं कि लास्ट 2 चरण तो पूर्वांचल से ही थे, तो कई जगह पे ये जो परिवर्तन का हवा लग रहा है, तो इसका कारण क्या है? जैसे मतलब मानिए कि मायावती जी ने भी सड़कें बनाई थी, खूब प्रचार किया, फिर हार गई। अखिलेश जी ने भी बनाया था, खूब प्रचार किया, उसके बाद फिर से हार गए। अब तो मोदी जी ने भी रास्ता बना दिया। तो मतलब इसका क्या, ये बिजली सड़क सब फ्री में दे देने से जनता खुश नहीं है? देखिए जनता सब जानती है, जनता कोई छिपी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो गद्दी बैठता है कुछ तो शर्म लगे करेगा ही, और कुछ नहीं करेगा तो दिखाएगा कि मैं क्या किया अगले साल। इतना तो उसका बनता है, वो तो करना ही करना है उसको, लेकिन पूर्ण रूप से करे तो जनता कभी शिकायत नहीं करेगी, हमेशा वही देता नहीं, रहेगा। आपकी बात मतलब सरकार काम कर रही है, ये दिख रहा है। सरकार क्या काम कर रही है, ये सवाल कौन पूछता है? ये तो सवाल जनता जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है, कोई भी कहना है। वही तो पूछ रहे हैं। हम तो यही जानते हैं कि भाई मोदी आए, देखे राम आपका अयोध्या वाला हुआ, इतने सालों से रुका रहा, वो भी पूरा हुआ। आपका कश्मीर वाला मुद्दा रहा, वो भी पूरा हुआ, इनके आने से ही हुआ। बाकी जितने भी नेता रहे, आज मनमोहन सिंह भी रहे, 10 साल से रहे, वो क्या किए हमको तो नहीं समझ में आया, लेकिन ये 10 साल से हमको ये समझ में आया कि परिवर्तन है। तो जो हाँ। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो कभी तो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काला धन वापस लाने की बात हुई थी। उसके बाद फिर विदेश में जा चुका काला धन वापस आया कि नहीं, ये लोग बता पाएंगे। आया, वापस आया? सिर्फ काले धन की बात, बहुत सारी बात है। करप्शन देखिए आप कहीं भी नहीं देखेंगे। करप्शन देखिए, काले धन पर्टिकुलर सवाल, पहले आपने जो सवाल उठाए हैं, पहले तो आपने पहली बार जब मेरे पास आया तो पूरा जवाब लेके आप नहीं गए, पहले पूरी जवाब लेके जाइए आप। बैठे हुए थे? नहीं, ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, आपने पार्टी की तरफ से बुलाया है तो मेरी तरफ से मेरा पक्ष पहले आप जान लीजिए। आपने बात करी सड़कें बनने की बात, आप अपने मुंह से मत फैलाइए कि सड़कें बनवाई थी सरकार, चले गए। इस सरकार से पहले रिकॉर्ड है, गूगल खोल के चेक कर लीजिए,
मात्र 2 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती थी, आज रिकॉर्ड है 30 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती हैं। आपको किसने कहा कि मैं मुंह से फैला रही हूँ? मैंने सिर्फ बोला, जब मायावती जी हारे थे उससे पहले उनका प्रचार भी मुद्दा था कि मैंने सड़कें बना दी। अखिलेश जी जिस बार हारे उससे पहले उनका मुद्दा था मैंने ये किया है, विकास के नाम पे किया है। पर विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, फिर वोट हो जाने के बाद कहाँ जाता है विकास? मेरा बात ये है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? आपने अभी जो बोला मैंने वो सुना, वो आपसे मैंने कहा आपके कैमरे में दिखेगा। पिछली सरकारें ऐसा करती थी, मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। पिछली सरकारों के 4-5 अगर मैं काम गिनाऊं और मौजूदा सरकार के काम गिनाऊं तो आप तुलना तौर दे सकते हैं। आप बहुत सब लोग जनता कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसके पूरे विश्व में जिससे हानि हुई, हमारा देश भी परेशान रहा, हर कोई परेशान रहा, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन करेंगे तो समाजवादी की सरकार जो पिछली सरकार की, सौभाग्य है उन लोगों का कि उस समय कोई महामारी नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी महामारी बुंदेलखंड में आई थी। योगेंद्र यादव जी हैं, स्वराज भारत अभियान जो उनका फाउंडेशन चलता है उसके तहत उन्होंने रिसर्च कंडक्ट कराई थी। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। अकाल एक ऐसी बीमारी है जो नीचे से आती है, गरीबों और मवेशियों को खाते हुए निकल जाती है। उस स्वराज भारत अभियान के तहत जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी, सुरक्षा कानून के तहत मैं नहीं कहता हूं कि पढ़िएगा, विकास की समीक्षा उसके लिए आरटीआई लगाई गई थी। तो आप बोल रहे हैं आपके सरकार में किसी ने कुछ पैसा खाया नहीं, कहीं पे कुछ हुआ नहीं है। तो जहां जहां मैं घूमी हूँ कम से कम 15 से 16 ऐसे गांव हैं जहां पे गौशाला नहीं है, छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं। किसान दिन में जो फसल फैलाते हैं, काम करते हैं, वो रात में भी पहरा देते हैं। मैं आऊंगी इस बात पे, पर मुझे अभी लेना पड़ेगा एक ब्रेक। একটা ব্রেকের পর আবারও ফিরছি এই চর্চায়, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের এই আড্ডায়। মন্দির নগরীতে একেবারে গঙ্গাবক্ষের মাঝে ভোট প্রচার তো অনেক দেখলো, কারণ যে রাজনৈতিক দল যারাই এখানে মানুষের কাছে আবেদন করতে এসেছেন প্রত্যেকে কিন্তু বাবা বিশ্বনাথকে সহায় করে বা কেউ অন্যান্য মন্দিরেও এসেছেন। 300-র উপরে মন্দির 80 করেই একটা আগা আজই শেষ হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সপ্তম দফার ভোট। আজই ছিল একেবারে শেষ দফা। বিকেল 5টা পর্যন্ত চলেছে ভোটদান পর্ব এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের বারাণসীর গঙ্গাবক্ষ থেকে সরাসরি আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা সেখানে রয়েছেন এবং সুচন্দ্রিমার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে সমস্ত প্রতিনিধিরা তারা রয়েছে এবং অন্যান্য আরও বেশ কিছু অতিথি রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আমরা আবারও সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাব। উত্তরপ্রদেশের মানুষ কি ভেবেছেন, তারা তো নিজের মতদান করে ফেলেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ নয়, এই যে 5 রাজ্যের নির্বাচন এবং 2024-এর আগে একটা মিনি সাধারণ নির্বাচন কেন বলছি, কারণ এখান থেকে যে ইস্যুগুলো উঠে আসছে, পদ্মের দাপট নাকি সাইকেলের যাত্রা, কোনটা চলবে এবার উত্তরপ্রদেশে, নাকি বসপা কংগ্রেস তারাও জমি বাঁচানোর লড়াইয়ে কিন্তু কোনো জায়গা ছাড়েনি এবং পরিস্থিতি যা এখনো পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে
এক পক্ষ কিন্তু যদি মূলত পদ্মের দাপটে বিশ্বাস করছে, অন্য পক্ষ চলে আসছে সাইকেলের যাত্রাকে সুগম করতে। এখানকার মানুষজন যারা এই মন্দির নগরীতে থাকেন, বারাণসী একেবারে মধ্যস্থল প্রদেশের, কিন্তু পশ্চিম থেকে শুরু করে একেবারে পূর্ব পর্যন্ত যে যে অঞ্চলে ভোটের ইস্যু, ভোটের কথা, ভোটের মুদ্রা নিয়ে যখনই কথা হয়েছে, বিকাশের কথা এসেছে, বেরোজগারির কথা এসেছে, মেহেঙ্গাইয়ের কথা এসেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের কথা এসেছে, এবং যদি এটাও বলতে পারি উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একই দলকে দ্বিতীয়বার না ফিরে আনার ইতিহাসের কথা যদি হয়, সেটাও এসেছে। তাই উত্তরপ্রদেশ কি ভেবেছে, উত্তরপ্রদেশের মানুষজন ভোট দিয়ে দিয়েছেন, 10 তারিখে তার পরিণাম সকলের সামনে আসছে। কিন্তু মন্দির নগরী থেকে আমরা যখন এই আলোচনা করছি, গঙ্গাবক্ষের থেকে বেরোজগারি, মেহেঙ্গাই ঘোচানোর জন্য তারা কি করতে চাইছেন, बेरोजगारी महंगाई घटाने के लिए सपा के हिसाब से क्या आएगी अगर आपकी सरकार आए तो? बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी हटाने के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। जो नौकरी अखिलेश जी ने देने का वादा किया है, आप लोग ने बोले हैं कि हम गर्मी शांत कर देंगे, हम लोग ने जवाब दिया है हम लोग नौकरी भर्ती निकालेंगे। हम लोग का ये बयान आप इनसे पूछ लीजिए, ये कहते हैं 12 बजे लड़कियां बाहर निकलती हैं। अभी परसों 3 दिन पहले मोदी जी का प्रोग्राम था, 100 लोग की चैन छिनाया रात में, शाम को 7 बजे करीब 100 लोग का चैन छिनाया। कहाँ इन लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया? कहाँ भी गुंडा राज खत्म किए ये लोग? गुंडा सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद यूपी में है कि और भी कोई? जौनपुर में आप चले जाइए, गाजीपुर में चले जाइए, बलिया में चले जाइए, कितने अपराधी हैं, किसके ऊपर लगाम लादे हैं। यहाँ पे बनास में बहुत से अपराधी हैं, चंदौली से लड़ रहे हैं लोग अपराधी, किसके ऊपर इन लोग कमान कमा रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा यही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 साल कोरोना, 3 साल हो गया, 2 साल 3 साल, एक भी हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया। 5 साल की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, ना एक स्कूल इन्होंने बनास में डाला तो बताया नहीं, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल कोई बता दे बनास के अंदर। क्या इसको पब्लिक की जरूरत नहीं था? इसके लिए 500 रथ निकले थे, वही 500 रथ अगर आपके कोरोना काल में अगर पब्लिक के लिए निकाले होते तो 500 रथ पब्लिक अपने घर आराम से चली जाती। वो जान दे के लोग पैदल नहीं आना पड़ता, जान दे के लोग रास्ते में चले गए, कोई ऑक्सीजन से मरा है, कोई पैदल चल करके मरा है रास्ते में। आप बसपा वाले क्या सहमत है बीजेपी के विरोध में? अगर आप लड़ रहे हैं तो क्या इस बात से आप मत से सहमत हैं? देखिए, हम किसी और की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपनी काम की बात करते हैं और अपने विकास की बात करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब अभी बताएं कि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में सिर्फ 98,000 नौकरियां मिलने के काम हुआ। शायद उनको नहीं मालूम है, 1,07,000 तो सिर्फ हमने नौकरी दिया झाड़ू वाले में, जो और कई 1,58,000 कितना शिक्षा मित्रों को हमने दिया। उसके बाद आप समझ लीजिए कि काशीराम आवास बना करके गरीबों, जो गरीब कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे सर पे भी कभी छत आ सकती है, ऐसे व्यक्ति को बना करके हमने छत देने का काम किया, लाखों लाख बना करके काशीराम आवास योजना के तहत। और आप जाकर के आप देखे होंगे तमाम सिटी के बाहर जो काशीराम आवास बनी है वो माननीय बहन जी का बनाया हुआ है। और हमने काम किया इस प्रदेश और देश में, प्रदेश में हमने काम किया है। काम के बदौलत हमको जो है वोट मिलेगा, और वोट नहीं मिल रहा है, वोट के साथ साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजिए, तो ये तो आपदा में अवसर खोजते हैं, कोई बात नहीं। जनता इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम मुद्दा था बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है चरम सीमा पे, ये झूठ बोलते हैं कि 5 लाख हमने नौकरी देने का काम किया। एक व्यक्ति अगर आकर के कह दे कि हमको इस सर्विस हमको मिला है, इस उसमें सर्विस मिला, कहीं किसी को सर्विस नहीं मिला है और न तो मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलने वाला कि सारे सेक्टर तो बेच दिया जा रहा है।
कहां से सर्विस मिलेगा। निश्चित तौर पे 10 तारीख के बाद सरकार बनने वाली है, जो सेक्टर बचा रहेगा उसमें से सर्विस निकाल करके लाखों लाख सर्विस अभी देना है और दिया जाएगा। अंधेरा होता जा रहा है और मच्छर ये भी बहुत बढ़ रहा है, पर एक बात अच्छा है कि सबसे बातचीत में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई डिबेट की बात तो हुई नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल चर्चे की बात हुई थी और भाईचारा बनी रहे। कोई भी किसी भी पार्टी से आए, सब अपना मत दे चुके हैं, नागरिक अपना मतदान कर चुके हैं और पार्टी के लोग जो है पार्टी के बारे में तो बात करेंगे ही। बस ये बात है कि वोट के बाद भी अगर ये बात नागरिक तक पहुंचे तो वो रिजल्ट पर दिख जाएगा। मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है, अब आरती का भी समय हो गया है। तो কি হচ্ছে পরিণাম উত্তরপ্রদেশের? পদ্মের দাপট নাকি সাইকেলের যাত্রাপথ শুরু হচ্ছে? হাতি দৌড়াবে নাকি হাত সবার ভরসা রাখবে? মূলত এই চার পক্ষ যুযুধান সব দল তারা কিন্তু জমি ছাড়েনি, কেউ কাউকে জমি ছাড়েনি। বিকাশের নামে ভোট চেয়েছেন, উন্নয়নের নামে ভোট চেয়েছেন, বেরোজগারির অভিযোগ তুলেছেন, বেকারত্বের অভিযোগের পাশাপাশি মূল্য বৃদ্ধিরও অভিযোগ উঠেছে। তাহলে 10 তারিখে কি হতে চলেছে তার দিকে যেমন গোটা দেশের নজর থাকছে, কারণ আবারও বলছি মিনি সাধারণ নির্বাচন বলছি যখন একে, তাই 2024-এ কি হতে পারে উত্তরপ্রদেশের এই মসনদ থেকে কারা দেশের আগামীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে তা কিন্তু গোটা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্যামেরায় সুবীর দাসের সঙ্গে প্রদীপের সঙ্গে বারাণসী থেকে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি। আপনারা শুনলেন যে বারাণসীর গঙ্গাবক্ষ থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং দিল্লির মাসনাদে কে বসতে চলেছে আগামী 10 তারিখ তা তো নির্ধারিত হয়েই যাবে, কিন্তু তার আগে ভোটের যে মূল ইস্যুগুলো, কি কি ইস্যুতে ভোট হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তারা কি কি বিষয় মাথায় রেখে ভোট দিয়েছেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আলোচনার মাধ্যমে আরও একবার আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।